वाहिगुरु साहिब जी। गुजरी महला चौथा। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जीवाया। हम होवे लाले गोले गुर सिखा के, जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ध्याया। मेरे मन तन बिरहों गुर सिख पग लाया। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करो उपदेश हर मिलै मिलाया। रहाओ जहाँ हर प्रभ भावै तां गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन भाया। वडभागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आव कृपाल कृपा प्रभ धारे, हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुण बाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। आप कृपाल कृपा प्रभ धारे, हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुण बाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा इस पावन स्थान पर चल रही है, आओ इस समय गुरबाणी की पावन कथा नाल जुड़न का सुभाग प्राप्त हो रहा है। चल रही लड़ीवार पावन बाणी की कथा विचार के तहत गुजरी राग दे विच धन गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन शब्द पाठ आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी के पावन वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 493 और 494 अंग ते अंकित ਹਨ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। इन्हां पावन अमृत वचनों के विच धन गुरु रामदास महाराज जी जो उपदेश कर रहे हैं, गुरमुखां दी संगत करन दा वड्डा भारी महात्म है। ते साहिब सच्चे पातशाह जी फरमान करते हैं, उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान जाइए जिन्हां ने मेरे मन और तन दे विच वाहिगुरु की भगती की जाग लाई है। उस विछोड़े नूं बिरहों नूं पैदा किया है। उन्हां गुरसिखां तो सदके जाइए, कुर्बान जाइए जो गुर सिख आप भी जपदे ने ते होरां नूं भी नाम दे नाल जोड़दे हन। सुआओ सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी जो उपदेश कर रहे हैं, पावन अमृत वचनां नाल सांझ पाइए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुजरी महला चौथा। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जीवाया। जदों जग्यासू नूं ਇਹ पता लग गया भी नाम कित्थों अते किवें प्राप्त होना है, तां उस मार्ग ते चल पैंदा है।
ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਚੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਬਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੋ ਹਰ ਵਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵੇ। 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਠੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਬਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਭਾਏਗਾ।
सिख को पिलाए पानी भाव कर खुर खेत असमेध जग फल सिख को जिवाए का। ते पानी पियाना सिख नूं भावना नाल ਇਹ एडा वड्डा महात्म है। सिख को पिलाए पानी भाव कर खुर खेत। कुरुक्षेत्र की धरती अपने नेड़े है। शास्त्रां विच पढ़ो कुरुक्षेत्र की धरती ते दान करन दा बहुत वड्डा महात्म लिखिया गया पुरातन ग्रंथां दे विच। ਉਹਦਾ एक कारण है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ कथा बहुत विस्तार नाल कीती सी। पुरातन ग्रंथां दे विच जो हवाला दिता गया है, कुरुक्षेत्र की धरती नूं वर्ल्ड विच सब नालों पवित्र मन्निया गया है। इत्थे कहते हैं कि जिस समय मद अते कैड पदार्थ नूं परमात्मा ने मारिया सी, इत्थे चौंकड़ा ला के बैठा सी कुरुक्षेत्र की धरती ते। ऐसा पुरातन ग्रंथां विच लिखिया हुंदा है। बहुत वड्डा महात्म दस्सिया गया इत्थे दान पुण्य करन दा। पर भाई गुरदास कहंदे तुसीं गुरसिख नूं पानी पिला देवो ते तुहानूं घर बैठिया ही एडा वड्डा महात्म मिल जावेगा। सिख को पिलाए पानी भाओ कर खुर खेत असमेध जग फल सिख को जिवाए का। सिख नूं जिवाए दा अर्थ है लंगर छकाना, प्रशादा छकाना। ਇਹਦਾ महात्म किन्ना असमेध जग जिन्ना है। असमेध जग हर कोई नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े राजे महाराजे चक्रवर्ती राजे वो करया करते सन। तीसरा प्रमाण भाई गुरदास जी अगे देंदे ने कि जैसे सत मंदर कंचड़ के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाए का। सत शब्द भाव है 100, अरबी फारसी का शब्द है। ਇਹਦਾ भाव है कोई 100 मंदिर सोने ਦੇ बना के दान करे, एक पासे ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਦਾਨ करे, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाए का। जैसे 20 बार दर्शन साधु किया काहू तैसा पुन सिख को पाग चाप सुआए का। कोई 20 वारी किसी पूर्ण साधु के दर्शन करे, एक पासे गुरसिख दी कोई गुरसिख थकिया होया ਉਹਦੀ मुट्ठी चापी करनी, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਤਾੜ देना, ਇਹਦਾ भी बड़ा भारी महात्म भाई गुरदास जी लिखते ने। गुरसिखां दी संगत दा महात्म सानू पता लगेगा जदों भाई गुरदास जी दी बाणी पढ़ांगे। इत्थे धन गुरु रामदास महाराज जी कहंदे उन्हां गुरसिखां तो सदके जाइए। उन्हां गुरसिखां दे कोल साडी बेनती है, गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जिवाया। ऐ गुरसिखो आत्मक सखियां सहेलियां गुरमुख आत्मक रूहां जिहड़ियां हन, जिहड़ियां आत्म रस विच विजीਆਂ होईयां हन, वो आत्मावां वो सखियां वो साडी आत्मा दीयां सहेलियां हन। उन्हां दे कोल बेनती है कि किरपा करो मैनू नाम दा दान दे के नवा जीवन बख्श देवो। हम होवें लाले गुरसिखां के जिन्हां आन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। असीं उन्हां गुरसिखां दे लाले गोले भाव मुल खरीदी सेवक बन जावांगे, जिन्हां ने हर रोज़ परमात्मा दा नाम ध्याया है, सिमरन कीता है। हम होवें लाले गोले गुरसिखां के जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। वेखो केडा वड्डा महात्म गुरबाणी दे विच लिखिया है। गुरसिखां दी सेवा करन दा, संगत करन दा, लाले गोले भाव हो के बड़ी निमरता विच आके सेवा करनी। भाई गुरदास जी एक होर कवित लिखते हैं,
बहुत उन्होंने गुरसिखां की महिमा बाबत लिखिया है, और जो लिखिया है सच लिखिया है। वो लिखते ने, नख सिख लो सगल अंग, रोम रोम काट काट सिखण के चरण पर वारी है। पैर दे नौं तो लैके अंगूठे दे नौं तो लैके सिर की चोटी तक, नख नौं नूं कहंदे ने। पैर दी अंगूठे दे नौं तो लैके नख सिख लो सगल अंग, रोम रोम काट काट सिखण के चरण पर वारी है। इन्ना सदके इन्ना कुरबान, कहंदे सेवा करन दा मौका मिले तो पैर दे नौं तो लैके दे सिर की चोटी तक अपना रोम रोम कट के भी सिखां तो सदके कर दईए। इत्थे ही बस नहीं, अगे होर लिखते ने, अगन जलाए पुन पीसन पसाए ताए लै होए पवन उडै अणग प्रकारी है। उन्हां कटे हुए रोमां नूं सदके करन तो बाद अग विच साड़ के उहदी राख बना ली जावे, ते हवा नूं पवन देवते नूं बेनती कीती जावे, ऐ हवा ऐ पवन जत कत गुरपंथ पाग, धारै गुरपंथ सिख, ताऊ ताऊ मार्ग में भस्म को डारी है। जिथे जिथे अमृत वेले गुरसिख उठ के इशनान करके गुरु घर वल चल के आउंदे ने, उन्हां नाम जपण वाले गुरसिखां दे मार्ग विच मेरी राख नूं डाल देवो। उत्थे पा देवी ये हवा जिथों जिथों गुरसिख लंघ के आउंदे ने। किन्ना सदके जा रहे ने भाई गुरदास जी, ते पद पादक चरण लिव लागी रह, दया कै दयाल मोए पतत उधारी है। हे दीना ते दया करन वाले मालक वाहिगुरू, किरपा करी गुरसिखां दे चरनां विच मेरा मन झुकिया रहे, ते पद पादक चरण लिव लागी रहे। दया कै दयाल मोए पतत उधारी है। उन्हां गुरसिखां पिछे मेरा भी उधार कर देवी, हम होवें लाले गोले गुरसिखां के, जिन्हां आन दिन हार प्रभ पुरख ते आया। लाले का अर्थ भी गुलाम है, गोले का अर्थ भी गुलाम है। मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम, सुभागा गुर की बचनी हाट बगाना, जित लाया ते लागा। एक ऐसी पदवी है जिहड़ा ऐसा जिन्हों लाला गोला आखिया जाता है, ਉਹਦੀ अपनी कोई वो नहीं हुंदी कंडीशन। वो कहता भी जो मैनू मर्जी दे देवो, रोटी पानी ते सेवा करी जाता है। ਉਹਦੀ कोई तनख्वाह नहीं, कोई ਉਹਦੀ मर्जी अपनी नहीं हुंदी। तनख्वाह वाला जदों मर्जी छड्ड के जा सकदा, अपने घरां विच नौकर चाकर काम करते ने, वो जदों मर्जी छड्ड के जा सकते ने। पर जिहड़ा गोला है वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो मालक के दर ते विकिया हुंदा, प्रेम करके वो छड्ड के नहीं जा सकता। धन गुरु रामदास महाराज फरमान करते ने, मेरे मन तन बिरहों गुर सिख पग लाया। बई इन्ना सदके क्यों जा रहे हो, गुरसिखां तो कुरबान क्यों जा रहे हो। गुरु रामदास महाराज जी कहते, वो जगियासू कहता भी मेरे मन तन में जिहड़ा बिरहों, ये वाहिगुरू दे विछोड़े दा बिरहों जागिया है, ये गुरसिखां ने कीता किरपा। पहला मेरे अंदर ये बैराग पैदा होया, तो गुरसिखां ने किरपा करके मैनू रब दे चरनां नाल जोड़ दिता। मेरे मन तन बिरहों, रब नूं मिलण दा विछोड़ा बिरहों पैदा होया। गुरसिखां ने किरपा कर दी, गुरसिख पग लाया, मैनू वाहिगुरू दे चरनां नाल जोड़ दिता। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करो उपदेश हर मिलै मिलाया। इस करके जिहड़ा जगियासू है वो सदा गुरसिखां दे कोल निमरता सहित रहिंदा है, बेनती करदा है, मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई। जिहड़े कहंदे गुरसिख ने वो मैनू इदां पुराने प्यारे ने जिवें मैनू मेरी जिंद प्यारी है। जिवें आपां अपनी जिंद नूं बचाउण वास्ते सारा कुछ वार दिंदे हां, निछावर कर देंदे हैं ना, इन्ना प्यार जगियासू दा गुरमुखां नाल हो जाता है। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको दे ओ करो उपदेश हर मिलै मिलाया। ऐ गुरसिखो मैनू किरपा करके ओ उपदेश देवो, सिक्ख्या देवो, हर मिलै मिलाया, कि रब मैनू मिल जावे।
हाँ मिल सकता है, पर तुसी कृपा करो जी। मिले मिलाया तुहाडा मिलाया होया मिल सकता है, क्योंकि संगत दी किरपा सब तो वड्डी मनी गई है। ताई तो महाराज कहते देहो सज्जण सीसड़ियाँ जो होवै साहिब स्यों मेल। संगत दी खुशी लैनी चाहिए है, संगत की खुशी दे विच ही रब की खुशी आ जाती है। रहाओ विश्राम दे के महाराज कहते जां हार प्रभ भाव है तां गुरमुख मेले। जिन वचन गुरु सतगुर मन भाया, उस वाहिगुरु नूं जो जी भा जाता है, वाहिगुरु फिर उन्होंने गुरसिखां दा मिलाप करा दिंदा है। तो फिर साडे मन में एक सवाल आवेगा, जदों वाहिगुरु नूं भावांगे वो आपे किरपा कर देवेगा। गुरबाणी दे विच गुरबाणी पढ़दे आ जां धर्म दे मार्ग ते ना बड़े सवाल मन विच खड़े हुंदे ने। इस सवाल दा हुण की जवाब है कि जदों रब नूं भावांगे जां हर प्रभ भावै, जदों हर वाहिगुरु नूं भागे तां गुरमुख मिलै मिलाए, तां गुरमुख मेले, तां वो गुरमुखां दा मिलाप करांदा है। देखो शुरुआत सानू करनी पवेगी। तुसी कोई भी काम करते हो ना तो रब अगू उहदा ढो बना दिंदा है, उदां दा संयोग होण लग जाता है। कोई भी काम शुरू कर लो, कोठी बनाउण लग जाओ, तुहानूं दसन लग जाणगे लोग, इत्थे इदां कर लो, इत्थे इदां कर लो, इदां बना लो, इदां बना लो। कोई भी काम जदों आपां तुरांगे भी असीं ये काम करना है तो सानूं फिर दसन वाले भी मिल जाते हैं। पर जदों आपां शुरुआत ही नहीं की तो फिर किसी नूं की पता है। जदों आपां बोलांगे ही नहीं, दसांगे ही नहीं, आपां किसी नूं कहांगे भाई मैं ना गड्डी लैनी है, तो वो दसेगा भी तुसीं ना वो कंपनी की गड्डी लो, जां उत्थों जाके गड्डी लो, तुहाडा इन्ना फायदा हो जाएगा। तो जे आपां किसी नूं पुछना ही नहीं, बोलना ही नहीं, तो सानूं कौन दसेगा। इसे तरह जदों आपां गुरु घर आवांगे, संगत विच बैठांगे, साडे अंदर ये लालसा होएगी। जदों आपां तुर पांगे तो वाहिगुरु फिर आपे ही उस तरह के गुरमुखां दा मिलाप कराउण लग जांदा है। जदों आपां चल पे, ईवन तुसीं अपने घर विच भी बह के कोई प्रयोग करन लग जावो, कुछ भी करन लग जावो, कोई ना कोई तुहाडे घर चल के आवेगा, समा आवेगा, वो कहेगा तुसीं ये की कर रहे हो, बना रहे हो समान, इनू वेचना है, इनू फलाने थां ते लै जाओ। अपने घर विच कुछ भी तुसीं बनाउण लग जाओ, कोई ना कोई आवेगा दस्सण वाला भी, ये तो बहुत वधिया चीज़ है, फलानी थां ते बहुत महंगी विकेगी। जदों आपां कुछ करना ही नहीं, घर विच विहले बैठे हाँ, किसी नाल बोलना चालना ही नहीं, ना कुछ करना, किवें प्राप्ति होवेगी। तुसीं घर बैठे शब्द दा अभ्यास करन लग जावो तो गुरु कृपा करेगा, कोई ना कोई गुरमुख तुहाडे घर भी आ जाएगा, मिलाप करा देगा वो वाहिगुरु। क्योंकि जिथे भी कोई किसी भी कारज नूं कर रहा है, वाहिगुरु उस तरह का मिलाप करा ही दिंदा। जदों आपां किसी मार्ग ते चलांगे तो उस मार्ग विच सानूं दस्सण वाले बहुत मिल जाणगे, साडा मार्ग दर्शन करन वाले। तो इस तरह जदों आपां चलांगे वाहिगुरु नूं भा जावांगे। क्योंकि वाहिगुरु नूं वो बंदा बड़ा चंगा लगता है जिहड़ा कोई ना कोई किरत करता है, कोई ना किसी मार्ग चलिया रहिंदा है। जिहड़ा बंदा हथियार सट देवे वो चंगा नहीं लगता। देखो जंग के मैदान में जिहड़ा लड़दा है ना, धार्मिक ग्रंथां विच भी लिखिया भी अगे रब दे घर भी प्रवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिछे नहीं हटिया, वो कहता मैं मरन लगा कोई गल नहीं, पर मैं जंग के मैदान में जूझ के मरांगा। पर जिहड़ा कार छड्ड के चला जाता है, भज जाता है, वो फिर इत्थे भी उहदी बेइज्जती हुंदी है, अगे परलोक विच भी। जिहड़ा कहंदा नहीं मैं अपने मार्ग तो हटना नहीं, कुछ ना कुछ करी जाना है, वो रब नूं भा जाता है। तो महाराज कहंदे वडभागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਛਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣ ਨਾਮ ਆਦਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਭਾਗਹੀਨ ਪਾਪੀ ਜਮ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਹੀਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਆਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।